شروع کرتے ہیں درس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. آج کا مادہ ہے صرف کا، اور جو کتاب اس میں مقرر ہے وہ ہے امین الصیغہ، اور درس کا موضوع ہے مبحث العلال، یعنی کہ تعلیلات کی بحث. اور اس تعلیلات کی بحث میں ہم جو ہے اس کے تعلیلات کے وہ جو تعلیلات ہے اس کے ہم قواعد پڑھ رہے ہیں. تو ان قواعد میں سے قاعدہ نمبر 7 ہے، اور اس قاعدہ کے جو قاعدہ نمبر 7 کی بہت ساری شرطیں ہیں. ان شرطوں میں سے ہم آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے شرط نمبر 6 اور شرط نمبر 7. دیکھتے ہیں شرط نمبر 6 اور شرط نمبر 7 کے بارے میں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. کتاب میں لکھا ہوا ہے شرط نمبر 6 کے بارے میں کہ لون و عیب کے معنی میں نہ ہوں. لون و عیب کے معنی میں نہ ہوں، جیسے آویرا و سعیدہ. اس کا کیا معنی ہوا؟ یعنی پھر اس کو جو ہے ہمیں جاننا ہوگا کہ قاعدہ نمبر 7 کیا ہوتا ہے. قاعدہ نمبر 7 یہ ہے کہ کوئی بھی واو اور یا اگر متحرک ہیں اور ان سے پہلے کیا ہے فتحہ ہے تو اس واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں. لیکن اس واو اور یا کو الف سے بدلنے کے لیے کچھ شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. انہی شرطوں میں سے چھٹی شرط کیا ہے کہ لون و عیب کے معنی میں نہ ہوں. یعنی کہ یہ کلمہ جس کے اندر یہ واو اور یا آ رہے ہیں اور ان سے پہلے فتحہ واقع ہو رہا ہے، یہ واو اور یا کسی ایسے کلمے میں نہ ہو جو کلمہ کیا ہے کسی رنگ پر دلالت کرتا ہو، یا جو کلمہ کیا ہے کسی عیب پر دلالت کرتا ہو. ٹھیک ہے، تو یہی معنی ہوا کہ لون معنی رنگ اور عیب کے معنی عیب. واضح ہے، یعنی کہ لون و عیب کے معنی میں نہ ہوں، یعنی کہ وہ کلمے جن میں یہ واو اور یا آ رہے ہیں وہ کلمے لون اور عیب کے معنی میں نہ ہوں، جیسے آویرا و سعیدہ. اس کو مثال سے بھی ہم بلیک بورڈ پہ سمجھیں گے. اور اس کے بعد ساتویں شرط ہے فعلان کے وزن پر نہ ہوں، یعنی کہ فعلان کے وزن پر نہ ہوں. یہاں بھی وہی چیز ہے، یعنی کہ وہ کلمہ وہ فعل جس کے اندر کیا ہے یہ واو اور یا متحرک ہو رہے ہیں اور ان سے پہلے فتحہ آ رہا ہے، وہ واو اور یا کسی ایسے کلمے میں نہ ہوں جو کلمہ فعلان کے وزن پر ہو، جیسے دوران و سیلان. تو ان میں کیا ہے تعلیل نہیں ہوگی کیونکہ یہ فعلان کے وزن پر ہیں. اور کیا ہے، اور نہ فعلا کے وزن پر ہو، جیسے سورا و حیدا. اور ایسے ہی وہ کلمہ جس میں واو اور یا یہ آ رہے ہیں تو یہ کلمہ کیا ہے فعلا کے وزن پر نہیں ہونا چاہیے. جیسے سورا و حیدا یہ کیا ہے، یہ فعلا کے وزن پر دونوں کلمات ہیں، اس لیے کیا ہے ان دو کلمات کے اندر تعلیل نہیں ہوگی. اور نہ فعلتن کے وزن پر ہو، یعنی کہ وہ کلمہ جس میں واو اور یا آ رہے ہیں وہ کلمہ کیا ہے فعلتن کے وزن پر نہ ہو. جیسے فعلتن کے وزن پر یہاں کے کلمہ لکھا ہوا ہے، جیسے حواکتن. تو یہاں تک یہ عبارت یہ ہو گئی. اور اس کو ہم سمجھتے ہیں بلیک بورڈ پر. یہاں پر کل ایک چیز تھی، یہاں پر جو میں نے سمجھا رہا تھا تفعلون تخشیون، تو یہاں اس کے بعد تعلیل کے بعد تخشونا بنتا ہے، نہ کہ تخشینا بنتا ہے. یہ غلطی سے وہاں پر ہو گیا تھا. اس کو میں نے جب اس بعد میں اصل میں ویڈیو یہاں پر کیا ہوتا ہے بنانے کے بعد ٹائم نہیں رہتا ہے، لگاتار ویڈیو بنانے ہوتے ہیں. اس کو جو ہے کرنے کے بعد پھر اس میں کچھ چیزیں مطلب جو ہے کچھ اور ہو جاتی ہیں، مطلب بتاتے وقت کچھ. تو یہاں پر یہ چیز کیا ہے، اس کو جب ہم کریں گے تفعلون سے تخشیون، یا کو الف سے بدلیں گے. یہ واو فاعل کا واو ہے، مدہ نہیں ہے. اور اس سے پہلے یہ کیا ہے، یہ مدہ زائدہ نہیں ہے، فاعل کا واو. اس سے پہلے یا ہے اور متحرک ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہے، تو اس یا کو الف سے بدلیں گے. اور جب اس یا کو الف سے بدلیں گے تو کیا ہو جائے گا تخشاؤنا، ایسے پڑھا جائے گا. یعنی کہ شین کے بعد الف، اس کے بعد پھر واو اور اس کے بعد نون. تو یہاں پر الف ساکن ہوگی، الف ہمیشہ ساکن ہوتی ہے، اور واو ساکن ہے. یہاں پر دو ساکن اکٹھا ہیں، اس وجہ سے کیا کیا جائے گا، اس الف جو ہے اس الف کو جو ہے بدلی ہوئی جو یا سے بدلی ہوئی الف ہے اس کو ہم گرا دیں گے. جب گرائیں گے تو یہ بنے گا تخشونا. لیکن کل جو ہے کل کے درس میں مطلب غلطی سے اس میں کیا ہے یہ لکھ اٹھا تھا تخشینا. تو وہاں پر جو ہے کل کا جو ویڈیو ہے اس میں جو ہے اس کی اصلاح یہاں سے مطلب کرنے کے لیے میں نے اس کو اشارہ کیا ہے. کیونکہ باتیں تقریباً کوئی قاعدہ اگر سمجھے گا صحیح سے تو مطلب اس کو بناتے وقت یہی بنے گا، نہ کہ یہ بنے گا. لیکن غلطی سے یہ لکھ اٹھا تھا تو اس کو دھیان میں رکھنا. تو یہاں پر کیا ہو گیا تفعلون، اس کا یہ کیا ہے اس کے وزن پر آتا ہے تخشیون. اصل کے اعتبار سے اپنے کیا آئے گا تخشیون. خشیہ یخشا جو مضارع ہے اس کی اصل کیا آئے گی تخشیون، تفعلون کے وزن پر.
और बाब समिया से, जैसे कि तस्माऊना, यहाँ पर अगर हम क्या है तस्माऊना लिखेंगे तो तस्माऊना के वजन पर क्या हो जाएगा तख्शयूना। चाहे हम यहाँ तस्माऊना लिखें या तफलूना लिखें, दोनों बात एक है, तो इसके वजन पर है तख्शयूना। और इसके बाद जब हम इसको तालील करेंगे तो आखिर में जो बन के आएगा वो आएगा तख्शौना। ये चीज़ थी, वाज़ेह थी, मतलब समझ गया हो, मतलब कि ऐसे लिखने में चीज़ वही थी, लेकिन क्या है इसको फिर मैंने जो है तो बताने के समझाने के लिए मैंने इसको कर दिया कि ये तख्शैना जो लिखा हुआ था कल के वीडियो में ये गलत है। इसके बाद आते हैं आज का दर्स जो है छठा नंबर, जो छठी नंबर शर्त है। छठी नंबर शर्त क्या कहती है? छठी नंबर शर्त कहती है कि ये वाव और या जिस कलमे में आ रहे हैं वो कलमा किसी ऐब या रंग पर ना दलालत करता हो, किसी रंग और किसी ऐब पर ना दलालत करता हो। यहाँ मैंने 4 कलमे लिखे हुए हैं, 4 कलमे यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। कुछ कलिमात किताब में मौजूद हैं, कुछ किताब में नहीं हैं, लेकिन समझने के लिए मतलब फ़ायदे के लिए मैंने यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है आवेरा का शर्त नंबर 6 जो है आवेरा। आवेरा के माने क्या होता है? काना, जिसको हम कहते हैं काना। काना जो होता है जिसके मतलब एक आँख से नहीं दिखाई देता है वो क्या होता है आवर होता है। और आमा क्या होता है? जिसको दोनों आँख से नहीं दिखाई देता है। तो अमिया का माना होगा, अमी जो है एक अरबी में 2 कलिमात होते हैं, एक होता है आवेरा से आवर और एक होता है आमा। तो आवर क्या होता है कि जिसके एक आँख से नहीं दिखाई देता है, और आमा क्या होता है जिसके दोनों आँखों से नहीं दिखाई देता है। जिसको आवर को हम कहते हैं काना और आमा को कहते हैं अंधा। जैसे कहते हैं अल-अअवरु बैनल उम्यान, एक मिसाल है अरबी में, अल-अअवरु फुलानुन अअवरु बैनल उम्यान, यानी कि फला आदमी क्या है अंधों के बीच में, मतलब कहते कि अंधों में काना राजा, इस तरह की मिसाल बोलते हैं। तो वो वाली चीज़ है कि मतलब अगर कहीं कोई किसी जगह में किसी क्लास में है, सबके सब में से घामट टाइप के मतलब जिनको मतलब पढ़ने में कोई सही नहीं, लेकिन उसमें से कोई थोड़ा सा मतलब जो है दूसरों के मुकाबले में थोड़ा सा अच्छा है, तो कहेंगे कि अंधों के बीच में ये काना है। यानी कि इसके पास मतलब जैसे यहाँ पर होता है इसके पास कुछ लोगों के पास दोनों आंखें नहीं है, इसके पास एक आंख कम से कम है, तो ये किसी हद तक सही है। अलमुहिम ये मतलब बाहर की बात थी। लेकिन क्या है आवेरा माने होता है कि जिसके मतलब क्या है जिसके एक आंख से ना दिखाई देता हो, यानी कि काना होना कह सकते हैं उसको। उसके बाद देखिए सईदा। सईदा का माने होता है कि जिसकी गर्दन क्या होता है जैसे टेढ़ी होती है, मतलब जब चलता है तो टेढ़ी गर्दन करके चलता है, सईदा ये इसका माना होता है। सवेदा माना होता है काला होना, और हवेरा माने होता है कि जो भीगा जो मतलब जिसको भीगा जो होता है, मतलब ऐसे तिरछी से देखता है जो, वो होता है इसके माने। तो यहाँ पर इन सारे कलिमात के माने यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ जो आवेरा जो है काना है, ये काना होना एक ऐब है। सईदा है गर्दन टेढ़ी करके चलना, ये एक ऐब है। सवेदा है मतलब इसमें क्या होता है काला होना, ये रंग है। हवेरा माने क्या होता है मतलब भीगी आँख से देखना, यानी कि तिरछी आँख से देखना, ये क्या है ये ऐब है। यहाँ पर 3 कलिमात क्या है, 3 मिसालें ऐब की हैं, आवेरा सईदा हवेरा, तीनों ऐब की हैं। सवेदा क्या है ये रंग की मिसाल है। अब देखते हैं इसमें क्या है, इसमें देखते हैं सबसे पहले मिसाल, यहाँ वाव मुतार्रिक है, इससे पहले फतहा है। यहाँ या मुतार्रिक है, इससे पहले फतहा है, यानी कि वाव पर कसरा की हरकत है, यहाँ पर कसरा की हरकत है। यहाँ पर भी वाव मुतार्रिक है, यानी कि वाव पर क्या है कसरा की हरकत लगी हुई है, और उससे पहले क्या है फतहा है। यहाँ भी वाव मुतार्रिक है, यानी कि उस पर कसरा है, और उससे पहले क्या है फतहा की हरकत लगी हुई है। इन सारी मिसालों में जो है कायदा नंबर 7 जो है, मतलब अगर पहले नज़र में देखेंगे तो लगेगा कि इसमें कायदा नंबर 7 पाया जाएगा, लेकिन क्या है यहाँ पर इसमें तालील नहीं होगी, क्योंकि छठी शर्त जो उसमें लगाई गई है कि वो कलमा क्या है किसी ऐब या रंग पर ना दलालत करता हो। तो यहाँ पर ये पहला कलमा ऐब पर दलालत करता है, ये भी क्या है ऐब पर दलालत करता है, और ये भी क्या है ऐब पर दलालत करता है, और ये भी क्या है, और ये क्या होता है सवेदा रंग पर दलालत करता है। इसलिए इन चारों कलिमात के अंदर तालील नहीं की जाएगी, यानी कि इनमें क्या है वाव को आवेरा में वाव को अलिफ से नहीं बदला जाएगा, वाव को अलिफ से नहीं बदलेंगे, या को अलिफ से नहीं बदलेंगे, वहाँ भी वाव को अलिफ से नहीं बदलेंगे, और यहाँ भी वाव को अलिफ से नहीं बदलेंगे। ये छठी शर्त हो गई। और उसके बाद क्या है 7वीं शर्त क्या है फ़अलानुन, यानी कि ये वाव और या जिस कलमे के अंदर आ रहे हैं वो कलमा क्या है फ़अलानुन के वजन पर ना हो। फ़अलानुन उसके वजन पर, जैसे कि उसकी मिसाल क्या है दवरानुन व सयलानुन, यहाँ हो गया दवरान दवरानुन। अगर इसका वजन करोगे इसका जो है तो इसका ये मीज़ान, ये क्या है मीज़ान है ये, तो इसके ये किस वजन पर है फ़अलानुन के वजन पर है, और सयलानुन क्या है ये क्या है फ़अलानुन के वज़न पर है। तो ये दोनों कलमे क्या है फ़अलानुन के वज़न पर है, और पहली मिसाल में
واو आया हुआ है और वाव मुतहर्रिक है और उससे माक़बल क्या है, फ़तह है, और दूसरी मिसाल में क्या है, या मुतहर्रिक है और उससे माक़बल फ़तह है, तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों मिसालों में तालील नहीं की जाएगी। तालील क्यों नहीं की जाएगी? वही जो शर्त कि सातवीं शर्त जो उन्होंने लगाई है, मतलब इस कायदे के लिए, वो सातवीं शर्त क्या है, यहाँ पर मफकूद है। सातवीं शर्त है कि मतलब जो है ये कलिमा फ़अलान के वज़न पर ना हो, और यहाँ देखते हैं कि दवरान और सैलान ये फ़अलान के वज़न पर हैं, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, इस वाव को अलिफ से नहीं बदलेंगे। यानी कि ये जो वाव है यहाँ पर, गर्चे इस पर मुतहर्रिक है, इस पर फ़तहा है, और इससे पहले क्या है, मफ्तू है, इससे पहले वाला हर्फ मफ्तू है, यानी कि इससे पहले फ़तहा पाया जा रहा है, लेकिन इस वाव को अलिफ से नहीं बदलेंगे। ऐसे ही क्या है, यहाँ पर या क्या है, गर्चे मुतहर्रिक है, यानी कि उस पर फ़तहा की हरकत लगी हुई है और उससे पहले फ़तहा है, लेकिन इससे या को अलिफ से नहीं बदलेंगे। इतना जो है इस सातवां, उसकी और बहुत सारी मिसालें हैं, मिसालें उसकी और बहुत सारी हैं, उसको जो है ऐसे ही मतलब फिर बता दे रहे हैं, जो मतलब हो जाएगा जल्दी से। इसके बाद और कह रहे हैं कि फ़अला के वज़न पर, यानी कि वो वाव और या जिस कलमे के अंदर आ रहे हैं वो क्या है, फ़अला के वज़न पर ना हो। जैसे यहाँ पर है सवरा, फ़अला किताब में लिखा हुआ है फ़अला, ऐसे उसकी मिसाल है सवरा हयदा। इन दोनों के अंदर भी का माना क्या होता है कि मायल होना, किसी चीज़ किसी तरफ क्या है, मायल होना, इसका माना पाया जाता है। सवेरा इसका फेल आता है, सवरा का सवेरा आता है वसमिया से, और इसका हादा यहीद मन होता है मायल होना, और सवेरा ये स्वरो मन होता है मायल होना। तो ये क्या है, फ़अला के वज़न पर ये दोनों कलिमात है, इसलिए यहाँ भी वाव को अलिफ से नहीं बदलेंगे और यहाँ भी या को अलिफ से नहीं बदलेंगे, गर्चे यहाँ या से पहले फ़तह है और यहाँ भी वाव से पहले